Moving on, the horrific killing of the minor Jharkhand girl has sent shockwaves across the country. Her heart-rending last statement, "He should die the way I am dying," is still echoing in everyone's ears. She was burnt alive just because she refused the advances of a boy named Shahrukh, the accused. Victim's family has been crying for justice, seeking a speedy trial, demanding nothing less than capital punishment for the accused, who had shown no remorse and even laughed after getting arrested. But at a time when Jharkhand's Dumka is on the edge, angry and distressed, the family is in unimaginable pain. State government MLAs should be on the front line. What are they doing really though? They're drinking and enjoying the high life at a resort in Chhattisgarh. Over 30 UP MLAs had flown down to Raipur instead of meeting the family and standing by them. The Chhattisgarh government vehicle parked outside the Mayfair resort was seen filled with expensive liquor bottles even before the arrival of the visiting politicians. This even as Congress, part of the government in Jharkhand, makes "Ladki hoon, lad sakti hoon" slogans during election campaign. The horror doesn't end here though. The family has been vocal of how little support they received from the government that once airlifted a rioter, Nadeem Ansari, who received bullet injuries after police action to Delhi. Why did this girl's pain and her family's pain not move the Soren government? Is it because the religious identity of the girl and the perpetrator of the crime doesn't suit their politics? Ankita's family had to move her hospital to hospital where she received poor treatment and eventually died when she could have been saved. The government was nowhere to be seen. The same government that was airlifting and was very active, airlifting a stone pelter and a rioter and even paying for his treatment. In fact, the government remained mum for 5 days post the crime, in complete silence and with no action taken. First, the chief minister was enjoying picnics, and then the entire state government just left the state for a resort. To rub salt in the wounds of the family, the victim was shown incorrectly as a major when she was a minor according to school certificate. It is being alleged that Dumka DSP Noor Mustafa tried to save the murderer from the stringent POCSO Act. So the big debate coming in, the family is in pain, everybody's crying for justice, but why are UPA government MLAs partying at a resort nearby? First up, here's what both sides are saying. पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है। झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए। ये बहुत जघन्य अपराध हुआ और ये बहुत ही गलत हुआ है, मैंने बहुत ही निंदनीय की बात है और इस पर ज्यादा से ज्यादा हम कहेंगे सरकार से भी और कानूनी प्रक्रिया में भी इसको सजा एकदम फांसी का सजा मिलना चाहिए। Some guests will be joining us in just a bit, but first up, I want to go across to Ankita's father, who's joining us for this conversation. और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वक्त निकालने के लिए, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी सांत्वना। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो रिस्पांस रहा है इस केस में, हम देख रहे हैं कि झारखंड की सरकार के उनके एमएलएज प्रदेश से बाहर हैं। आपके पास भी कोई बड़ा लीडर मिलने को आया नहीं है, कोई मिनिस्टर बड़ा मिलने को आया नहीं है अभी तक। आप क्या कहना चाहेंगे? अंकिता की मौत के बाद गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा रहा है आपके लिए? बीजेपी के जितने भी बड़े से छोटे नेता थे सब आए, सब मिलके गए, सब कुछ न कुछ मदद किए। मदद करके यहाँ के जो सांसद हैं सुनील सोरेन बीजेपी के हैं, सबसे पहले हॉस्पिटल वही आए थे, दुमका सदर अस्पताल। आने के बाद उसने ही मुझे बोला कि मतलब कि मेरे पास पैसा की कमी थी। यहाँ पर हम 5:30 सवा 5 बजे हॉस्पिटल पहुँचा सुबह में, तो यहाँ पर पैसा के कारण हम कहीं बाहर नहीं जा सक रहे थे। यहाँ डॉक्टर बोल दिया कि बाबू तुम बाहर ले जाओ, कहीं यहाँ पर एसी भी नहीं है, हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, सिर्फ पंखा घर से ले गया, ऊपर खाली फैन चल रहा था, बोन वार्ड लिखा हुआ है लेकिन एसी नहीं है दुमका सदर अस्पताल में। उसके बाद हाँ डॉक्टर देख करके बोल दिया 90% जली हुई है, यहाँ से जहाँ इच्छा करे ले जाओ। अब हमारी तरफ से मतलब कि तुम जहाँ बोलोगे जब बोलोगे तुमको हम यहाँ से रेफर कर देंगे। मेरे पास पैसा नहीं, कमी के कारण, पैसा नहीं रहने के कारण हम उसको बहुत डिले कर दिए। उसके बाद विधायक जी आए, सांसद जी आए सुनील सोरेन, वो बोले कि काम करो हम एम्बुलेंस तेल देते हैं, तुम चले जाओ रांची रिम्स।
तो हमें सब रांची रिम्स चले जाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है। फिर यही लोग ने व्यवस्था करके मतलब कि 10-15 हज़ार रुपये हमको दिए, मतलब चले जाओ वहाँ मेरा आदमी रहेगा, वहाँ जाके तुम्हारा इलाज होगा। रिम्स हॉस्पिटल पहुँचा यहाँ 9:30 बजे रात में 23 तारीख को, वहाँ पहुँचा 24 तारीख को सुबह में 4:30 बजे। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ सब कुछ मतलब कि कागज उगज बनाते बनाते आधा घंटा लग गया। लगने के बाद इलाज शुरू हुआ। इलाज शुरू होने के दौरान हमको वहाँ भी बोर्न वार्ड में दिया गया। वहाँ की बोर्न वार्ड में भी एसी नहीं, सिर्फ फैन है, पंखा चल रहा है। वहाँ भी एसी नहीं, लिखा हुआ है बोर्न वार्ड, 4 गो एसी लगा हुआ, लेकिन मतलब कि चलता ही नहीं है वो एसी। वहाँ को पेशेंट से पूछे कितना दिन से हो भाई, बोले हम 15 दिन से हैं। अब पूछे कितना दिन से हो, 10 दिन से हैं। एसी नहीं चलता है क्या? एसी चलता था क्या? नहीं, एसी तो चलता ही नहीं है। अब 15 दिन से हॉस्पिटल में, अब बेड पे, आज तक एसी नहीं चला। तो वहाँ पे वहाँ के करनी सेना आए, वहाँ पर बोले कि क्या बात है, तो पता चला उन लोगों को। तो आए, आने के बाद वहाँ एगो हमको टेबल फैन खरीद के दिए। वही टेबल फैन चला चला के बच्चा को अपना हवा लगा रहे थे। You know, some other guests are also joining us. एक सेकंड हम मेरे साथ रुकिए। Tuhin Sinha of the BJP, Arshpreet Singh Khadial of the Congress Party, and Dr. Tanuj Khatri of the JMM also joining us. And I want all of our guests to listen to the ordeal that the father of the victim is telling us. He is very categorically saying that it's only BJP leaders who met him, they helped him. He's mentioning Karni Sena, who brought fan for the victim in the hospital, 2 hospitals where they had to go. Only BJP helped them to give them money to move. The government was nowhere to be seen. The administration was nowhere to be seen, and ACs were not working in the burn victim in the burn wards. It's a matter of utter shame for the government. But I want to go across back to the father. क्या आपको लगता है कि अगर थोड़ा सा बेटर केयर हो जाता, जैसे कि पहले भी सरकार ने मरीजों को हेलीकॉप्टर से दिल्ली के बेटर हॉस्पिटल्स में लाए हैं, ऐसा एग्जाम्पल है 2-3 महीने पहले का, अगर आपकी बेटी के लिए भी कर दिया होता तो क्या आपको लगता है उसकी जान बच सकती थी? उस समय अगर व्यवस्था हमको सही टाइम पे व्यवस्था, सही टाइम पर पैसा, सही टाइम पे हमको अगर मिल जाता तो हम बेहतर से बेहतर जितने भी बोर्न हॉस्पिटल है मतलब दुनिया कहीं भी अच्छा से अच्छा इलाज करवाते तो मेरा बच्चा बच जाती। हम तो सोचे कि बोकारो में बोर्न वार्ड अच्छा है, बोर्न हॉस्पिटल अच्छा है, हम वहाँ जाके इलाज कराते तो मेरी बेटी बच जाती। वहाँ भी गए रिम्स रांची में, डॉक्टर एक बार आती थी, उसका एक बार सुबह आई, आज शाम में, उसका फिर दोबारा दूसरा दिन नेक्स्ट डे आती है। वहाँ के सिस्टर लोग सलाइन रे ये वो सब सलाइन चलाने से क्या होगा, वहाँ उसका ट्रीटमेंट अच्छा मिले तब तो। ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलने के कारण मेरा बच्ची मर गई।